दिन बीत रहे हैं, but till this pandemic hit it in our lives, a new term has been popping out too much lately: the self-love and selfish. If we think about ourselves, we are considered negative, and if we think about others, we are considered good, we are considered kind. Well, if we ask, some people will probably say both are same. Some will say, I don't know the way to self-love, but what it is really. So let's dig deep into the conversation with Nikita to find out, is self-love really being selfish? Welcome, Nikita Savalakhe. Thank you for joining us into the conversation of finding out what is self-love and selfishness, and is self-love being selfish. As we know, there is a thin line between self-love and selfishness. How do you find that thin line, and what is really self-love and selfishness? We will going to be discussing all of that. Hi Sanjana, thank you for calling me for this discussion. Because this topic is very, people are very curious about this topic nowadays. So I think बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना एंड एक्चुअली में समझना द थिन लाइन बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस. सो आपने बहुत अच्छा बोला कि समझना बहुत ज़रूरी है, बट हम उसको समझे कैसे? कैन यू एक्सप्लेन दैट? या एक्चुअली सेल्फ लव ना बहुत इजी चीज़ है. सी, सेल्फ लव वर्ड ही अपने आप को डिस्क्राइब ऐसे करता है कि इट इज़ द लव फॉर योर सेल्फ, राइट? कि खुद की देखभाल करना, खुद की हैप्पीनेस के बारे में समझना, caring about our own well-being and happiness more than other people's. मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही उनको भी साइड में कर दिया कि नहीं देखना कुछ नहीं, बट to keep a balance, between our own needs and other people's need. कि कब मुझे अपने आप को टाइम देना है और कब दूसरों को टाइम देना है. So I think this is how I would describe self-love. Take care for oneself and our own well-being and happiness. सो बेसिकली ये है कि खुद में मतलब बैलेंस बना के रखना दोनों चीज़ों में, एंड खुद को एक्सेप्ट करना एज यू आर. थैंक यू निकिता फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस. As we have described self-love, there must be some elements of self-love which helps to understand self-love even more deeply. And we will explain them going through our discussions and answering your questions. Last week, we posted on IG about this topic कि आप भी अपने questions भेज सकते हैं, and we got positive response on that. And this time, the time has come and where we will be answering your questions and learn something through this journey of episode. So the first question we have got is, do you think being selfish is also a kind of self-love? Is it okay to be selfish? Okay, so as we just understood self-love क्या होता है, right? So now we have to understand what is selfishness. What people do is that they keep thinking कि I have to take care of myself, I have to keep myself above other people. So when your main focus becomes prioritizing yourself all the time above everyone else, you slowly turn to be selfish. Okay, because selfishness क्या है कि इवन दो सामने वाले को आपकी बहुत जरूरत है, यू कैन सी हाउ एसेंशियल योर हेल्प इज, यू स्टिल डोंट हेल्प देम बिकॉज तुम सोच रहे हो नहीं मेरे को अपने आप को पहले हेल्प करना है. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द टू. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बैलेंस. जैसे मैंने पहले कहा था, एक बैलेंस होना चाहिए. यू हैव टू लर्न कि कब मुझे खुद की हेल्प करनी है एंड कब वो टाइम है जब मैं दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो निकिता, व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे कौन सा एलिमेंट सेल्फ लव का लग सकता है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट डू यू थिंक? इसमें टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, वी नीड टू हैव सेल्फ अवेयरनेस एज वेल एज सेल्फ एक्सप्लोरेशन. बिकॉज अगर आप खुद के बारे में अवेयर रहोगे एंड खुद को भी एक्सप्लोर करोगे तो इट गिव्स यू द फोकस टू लुक एट अदर्स ऑल्सो. These two elements are necessary because obviously when you are aware about your own self, तो दूसरों की प्रॉब्लम्स भी समझने आने लग जाती है, तो तब आप समझ पाते हो कि हाँ कब मुझे क्या करना है. हाँ, और ये बहुत जरूरी है सेल्फ खुद को एक्सप्लोर करना, ताकि खुद की गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज समझ सके, ताकि दूसरों की नजरों में बुरा ना बन जाए. बैड क्वालिटीज छुपा सके.
तो अभी हमने जैसे लास्ट ईयर देखा कि पैंडेमिक में बहुत लोग सेल्फिश हो गए थे, कि जो कि दैट वाज नॉट राइट। मतलब थोड़ी देर तक ठीक था कि खुद की बचाव कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, पर बाद में जब कमोडिटीज का आया, मार्केट में कुछ बचा ही नहीं, जो बेसिक नेसेसिटीज थी वो सारी खत्म हो गई। सो डू यू थिंक कि यहाँ पे सेल्फ लव जरूरी था या सेल्फिशनेस भी जरूरी था? Okay, so actually pandemic आने के बाद क्या हुआ, we got like हम अलग हो गए रियलिटी से बहुत. Okay, we were only conversing with people online, कोई presence नहीं थी लोगों की. तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए लोग they thought we should take care of ourselves. तो लोग बाद में आ जाएंगे, पहले खुद को, because adjusting to this new environment was very necessary. तो सेल्फ लव हुआ, बढ़ता गया, एंड एट सम पॉइंट ना इट टर्न्ड इनटू सेल्फिशनेस, कि बिकॉज देयर वाज नो प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल इन योर लाइफ, राइट? एंड जब लोग ऑनलाइन आपके सामने होते हैं ना, यू डोंट एक्चुअली केयर अबाउट देम दैट मच एज यू शुड. तो इसलिए वो सेल्फिशनेस में बदल गया, जो कि बहुत गलत था, क्योंकि एज यू हर्ड द न्यूज की चीजें खत्म हो रही थी, सप्लाईज खत्म हो रहे थे, बिकॉज एवरीवन केयर्ड अबाउट देमसेल्व्स ओनली. सो आई थिंक एट द स्टार्ट ऑफ पैंडेमिक इट वाज सेल्फ लव, लेकिन धीरे धीरे वो सेल्फिशनेस में चेंज होता गया एंड लोग वो चीज समझ ही नहीं पाए. Here you made a very great point. So next question we have कि हम जैसे हमने देखा पैंडेमिक में, और हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं, हमें कुछ लोग पसंद नहीं होते या जिनसे हमारी बनती नहीं है. हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, उनके साथ कनेक्शन भी नहीं बंद कर सकते. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इज लीविंग समवन फॉर आवर पीस इज सेल्फ लव और सेल्फिश? हर इंसान जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ भी एक रिलेशनशिप में हो, जो कि फैमिली है, एंड आप अपने लवर्स के साथ भी रिलेशनशिप में होते हैं, राइट? आप एक रिलेशनशिप में आते हो टू फाइंड पीस, कि कोई दूसरा इंसान है, यू शेयर योर आइडियोलॉजीज, योर इंटरेस्ट्स एंड योर कंफर्ट जोन्स, एंड व्हाई यू डू दैट टू अटेन a level of peace inside you, a level of happiness. and ये questions कब निकलते हैं? जब वो जो एक stability होनी चाहिए आपके अंदर, आपके mind में, वो नहीं होती, right? At that point you start questioning, I mean, should I leave this person? Like, is it right what I'm doing? But उस point पे ना आप पहुंच भी, जब ऐसा होता है ना, एक point पे पहुंच जाते हो that you love that person so much that you don't know what to do. So actually loving is एक तरफ, but खुद को love करना भी एक तरफ है. and अगर leave करना तो बहुत end stage है. what you have to do is first that you have to talk to your partners, और जो भी आपको जिससे परेशानी हो रही है, you talk to them, राइट? यू ट्राई कि कोई सोल्यूशन निकल सके, कि हम आपस में बात करके एक सेंटर पॉइंट पे आ सके कि मैं इतना एडजस्ट कर रही हूँ, तुम इतना एडजस्ट करो, मे बी थिंग्स विल गेट बेटर. लेकिन जब इतनी मेहनतों के बाद भी, इतनी चीजें करने के बाद भी नथिंग इज इम्प्रूविंग and your mental state is deteriorating day by day, then I think it is right to leave that person for your self peace. Because एक बार you lose that mental stability, it gets very difficult to become what you were before that relationship started. After trying everything, अगर nothing is working, then leaving is fine. Leaving is That good is, for ourselves. yes. Right? So यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेल्फ काइंडनेस जो एलिमेंट है सेल्फ लव का, हम वो अप्लाई कर सकते हैं, और सेल्फ केयर का भी. क्योंकि अगर आप किसी के साथ खुश नहीं हो, चाहे वो आपका दोस्त हो या लव्ड वन हो या कोई भी हो, अगर आपके साथ उनकी बॉन्डिंग नहीं बन रही है, कोऑपरेटिंग नहीं हो रहा है, तो यू कैन लीव देम for your peace and for their peace. Exactly, because it's better to avoid that friction every day, right? And to give each other space to heal from within. And also in elements के साथ self respect भी इसमें आता है, because if you only are giving in the relationship and not getting what you deserve, then you have to stand up for yourself. You have to have some respect for your own self. That's a very good message you are giving and thanks for being here. आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि खुद
खुद को प्यार करना सेल्फिशनेस नहीं है और ये कोई भी कर सकता है। बट कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि लोग सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में अंतर या डिस्क्रिमिनेट क्यों नहीं कर सकते। ओके, सो इस सवाल का जवाब हम ऐसे दे सकते हैं कि जैसे अब मैं हूँ, ठीक है, अब मुझे कोई काम करना है, मैं बहुत लंबा वीकेंड था, आई नीड टू टेक केयर अबाउट माई सेल्फ, यू नो, आई एम वेरी टायर्ड एंड रिचार्ज होना इज वेरी नेसेसरी, सैटरडे है, एंड सडनली वन ऑफ योर फ्रेंड्स कॉल कि या प्लीज कम कम कम, आई हैव टू गो, ये कोई मेला लगा है या कुछ लगा है एंड आई नीड टू गो। सो अब कुछ लोग क्या होते हैं ना ऐसी सिचुएशन में, इवन दो कितने ही थके हो, कितना ही उनको वो डे ऑफ क्यों ना चाहिए हो, दे एक्चुअली गो विद देयर फ्रेंड्स, क्योंकि यू नो उनको लगता है कि क्या जरूरत है, यू नो, कि मैं तो अपना कभी भी कर लूंगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते उन टाइम्स में जब करना है। सो दे जस्ट लीव कि हाँ चलो ठीक है, एंड वो फिर ना दूसरे लोगों को क्या लगता है कि ये तो यार फ्री रहते हैं हमेशा, इनका यूज कर लो, है ना। तो अब क्या है ना कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि कहीं हमें कोई सेल्फिश ना बुला दे, यू नो, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, एंड जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली यू गेट एग्जॉस्टेड डे बाय डे बाय डे। ओके, सो लोग जो है वो इसलिए डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस के बारे में, मतलब के बीच में, क्योंकि जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो ना डेली, तो यू स्टार्ट टू रियलाइज कि हाँ मेरी नीड्स हैं, हाँ मुझे कैसे खुद की देखभाल करनी है, यू नो, एक रूटीन आप बना लेते हो कि कोई, कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ दे जस्ट नेटफ्लिक्स एंड चिल, राइट। बट जो लोग ये चीजें नहीं करते, यू नो, जो अपनी खुद की कदर नहीं करते, तो उनके अंदर एक वॉइड सा बन जाता है, यू नो, व्हेन यू डोंट गिव योरसेल्फ द लव एंड केयर यू नीड, तो वो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो एक तो वो चीज हो जाती है, यू रीच आउट टू अदर पीपल, योर फ्रेंड्स एंड ऑल, की प्लीज मेरे को, यू नो, लव दो, इनडायरेक्टली मेरी केयर करो। एंड सेकेंडली, जब आप ये चीज प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो यू डोंट रियलाइज कि यार जैसे मेरी नीड्स हैं वैसे दूसरों की भी नीड्स हैं, क्योंकि जब आप सेल्फ लव कर रहे हो तो हाँ, अगर आपके पास कोई फ्रेंड आ रहा है, यार आई नीड दिस डे ऑफ, आई कांट, तो यू रियलाइज कि यार मुझे भी टाइम चाहिए होता है डेली, तो इसको भी टाइम चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो वो चीज, हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट अदर पीपल आल्सो नीड सम टाइम फॉर देमसेल्फ। सो दिस इज द रीजन वो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाते। दैट्स अ वेरी गुड रीजन। वो खुद तो काम करवा लेंगे लोगों से, बट दूसरों का वो काम नहीं करेंगे। और वो ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज दे फील गुड अबाउट इट कि आई एम द सुपीरियर एंड यू आर द इन्फीरियर। यस, क्योंकि वो थोड़ी चाहते कि हमें खुद इनकन्वीनियंस हो, दूसरों को हो जाए कोई बात नहीं, मेरी नीड्स पहले पूरी होनी चाहिए। ट्रू। तो सेल्फ लव और सेल्फिशनेस जब रिलेशनशिप में आ जाती है तो हम उसे साइकोलॉजिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? वेल, बहुत थिन लाइन होती है सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में, खासकर जब रिलेशनशिप्स की बात आती है। सो होता क्या है कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, दो लोग होते हैं, सो रिलेशनशिप होता क्या है, गिव एंड टेक वाली चीज होती है कि आप अपना लव दे रहे हो, आप अपनी वार्मथ, अपनी केयर, अपना टाइम, एनर्जी सब एक दूसरे इंसान को दे रहे हो, राइट। और जब आप इतना किसी को कुछ दे रहे हो तो आप थोड़ा बहुत तो इन रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, चाहे आप वो कॉन्शियसली कर रहे हो या सबकॉन्शियसली कर रहे हो। सो व्हाट हैपेंस इज, वो थोड़ा डिफरेंस आने लग जाता है ना, क्योंकि सामने वाला कभी कभार सेल्फिश हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे कपल्स में से, यू नो, एक कोई पार्टनर सेल्फिश है, बट कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होती है कि जो पार्टनर है वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सेल्फिश होने लग जाता है। एंड जब वो गिव एंड टेक वाली चीज में एक बहुत लंबा गैप आ जाता है ना कि आपको वो चीजें नहीं मिल रही इन रिटर्न, तो एक एनालिसिस आपके ब्रेन में शुरू होता है। इट्स कॉल्ड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ऐसा नहीं है उसी टाइम पे शुरू होता है, इट्स ऑलवेज देयर, ठीक है। तो ना आप ऐसे एनालाइज करने लग जाते हो, यार मैंने इतना इसके लिए किया, इतना मैं कर रही हूँ, और शुरुआत से लेकर अब तक इसने मेरे लिए क्या क्या किया। तो जब वो सेल्फिशनेस एक लेवल के पार पहुंच जाती है तो दिमाग डिसीजंस उसके बेसिस पे बनाने लग जाते हैं कि यार जब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा तो आई गेस आई शुड लीव, राइट। तो ये प्रॉब्लम है कि बहुत परेशानी आ जाती है रिलेशनशिप्स में जब लोग सेल्फ लव और सेल्फिशनेस को कंफ्यूज करने लग जाते हैं। दैट्स व्हाई सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट concept in psychology. Okay, thank you Nikita for sharing the psychology concept,
थोड़ी हमें भी सीखने की मिल गई। अच्छा, आपने हमें ये तो बता दिया द पर्सन इज गेटिंग सेल्फिश एंड हाउ वी कैन नो दैट, है ना, whether he is self-loving or whether he is selfish, we get to know that by processing our thoughts in our mind. But if any person wants to help that person who is very selfish कि भाई तू बहुत ज़्यादा selfish है, but हम उसको बोल नहीं सकते, तो हम कैसे ways में उनकी help कर सकते हैं कि that they convert their selfishness to self love? तो बहुत लोग ट्राई करते हैं कि यार मेरा ये फ्रेंड बहुत सेल्फिश है या मेरा पार्टनर बहुत सेल्फिश है, तो मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट? काफी लोग रिलेशनशिप्स में भी ऐसे आते हैं कि यार आई कैन चेंज दिस पर्सन यार, बट इन रियलिटी नो वन कैन चेंज द अदर पर्सन, क्योंकि एक ना लेवल ऑफ इंसाइट होता है साइकोलॉजी में कि मोस्टली इट इज फॉर कि जानना कि तुम सेल्फ अवेयरनेस होती है ना, कि तुम कैसे हो, तुम कैसे लोगों से बात कर रहे हो, कैसे पेश आ रहे हो लोगों से। जब तक उस इंसान में एक इंसाइट नहीं है, एक सेल्फ अवेयरनेस नहीं है ना कि मैं लोगों के साथ बुरा कर रहा हूँ और कि मुझे चेंज होने की जरूरत है, कि मैं ये क्या कर रही हूँ लोगों के साथ, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। इवन जैसे आप थेरेपीज के लिए जाते हो साइकोलॉजिस्ट के पास, मोस्टली पीपल थिंक कि आप वहां जाओगे तो आपको जो थेरेपिस्ट है वो एडवाइसेस देगा और आपको खुद ही चेंज करेगा पकड़ पकड़ के कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसे करो वगैरह। बट नो, द मेन गोल ऑफ अ थेरेपी इज की टू मेक द पर्सन अवेयर ऑफ देयर शॉर्टकमिंग्स एंड टू मेक देम अवेयर हाउ दे कैन हेल्प देमसेल्व्स, राइट? तो ये चीज आप बिल्कुल भूल जाओ कि आप किसी को चेंज कर सकते हो, क्योंकि जब तक कोई इंसान अंदर से चेंज नहीं होना चाहता ना, जब तक उसके अंदर एक मोटिवेशन नहीं है खुद को बदलने की, खुद को बेटर बनाने की, you can't do anything about it. You can't change other person unless that person is willing to change himself or herself. You said it right कि खुद को बदलने की चाबी भी हम खुद ही हैं, है ना? हम किसी को चेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुद चेंज नहीं होना चाहता। अब चाहे जितने ही ट्राई कर लो, जितना ही उसको समझा लो, जितना ही थेरेपिस्ट के पास ले जाओ, पर थेरेपिस्ट के पास जाके भी तभी वो काम आएगा, तभी उसकी प्रोग्रेस होगी जब तक वो अपनी चाबी खुद नहीं बने। हाँ जी। I want to ask him something कि अगर मान लो कोई किसी ने अपनी बहुत प्यारी चीज या अपना कोई प्यारा साथी या बहुत अच्छा दोस्त खो दिया है, तो क्या that thing helps in changing that person nature or personality? What do you think about it? Okay, so बात रही पर्सनालिटी की, so what we are taught from the beginning in psychology is कि पर्सनालिटी ना बहुत कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट लाइफ, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है अनटिल और अनलेस आपने एक बहुत ही ट्रॉमेटिक इवेंट अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे आपने कहा कि बहुत ही प्यारी चीज कोई खो दी है जिसकी वजह से बहुत हर्ट है इंसान, बहुत परेशान है, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो कोई चीज हो। इस केस में इंसान सिर्फ तभी चेंज हो सकता है जब वो इवेंट उसके लिए ट्रॉमेटिक हो थोड़ा सा अंदर से, कि जैसे अगर आपको कोई छोड़ के चला गया, तो ऐसी केसेस में होता है कि कभी कभार ना कि आप बहुत ट्रॉमेटाइज हो गए हो कि ओह माय गॉड शी लेफ्ट मी और ही लेफ्ट मी, और तब कभी कभार ना एक अवेयरनेस आती है कि हाँ मेरी गलती थी जिस वजह से वो सामने वाला इंसान चला गया, वो चली गई। तो ये चीजें जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना, तो तब जाके थोड़ा बहुत आपके अंदर एक चेंज आता है, एक अवेयरनेस आती है कि व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग एंड आई हैव टू चेंज माय सेल्फ। उसके बाद भी आई एम नॉट सेइंग कि कोई गारंटी है दैट वो पूरी तरह से 180 डिग्री चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल ही, बट हाँ एक स्कोप आ जाता है बिकॉज दे बिकम अवेयर कि हाँ मेरी गलतियां थी, मैंने कुछ किया है एंड आई नीड टू चेंज। यस, एक्चुअली इट डज अफेक्ट्स सम पीपल। So thank you so much for sharing that. I hope this answer helps someone to find if they can change or not, if they can change their loved ones. So as we are coming to the end of our journey, so I would like to ask one question from my side. Do we need to consider or give selfish all the negative points to survive in today's world? हम सारे negative points selfish को भी तो नहीं दे सकते ना? Actually, that's a very good question because अब आप देखो when people start to improve themselves, improvisation आती है कि खुद की केयर करके, right? तो what happens is कि
लोग ना ऐसे दूसरे लोगों को खींचते हैं कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम नीचे आओ, तुम ये हो गए। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है ना कि सेल्फिश बनना थोड़ा नेसेसरी हो जाता है। इफ यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इफ यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, थोड़ा बहुत सेल्फिश होना पड़ेगा। द ओनली रीजन सेल्फिशनेस इतना नेगेटिविटी आज के टाइम पे लोग इतना नेगेटिवली उसको देखते हैं, बिकॉज कुछ लोग सेल्फिशनेस यूज करते हैं खुद को ठीक करने के लिए, एंड पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, सो दे ट्राई टू ड्रैग यू डाउन विद देमसेल्व्स कि नहीं तुम ठीक नहीं होगे, तुम गलत कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो दैट इज सेल्फिश। सो आई थिंक इट्स रियली नॉट अ गुड वे टू से कि हाँ भाई सेल्फिशनेस बहुत ही गंदी चीज होती है वगैरह, एटलीस्ट नॉट इन टुडेज वर्ल्ड। क्योंकि आप देखो इट इवन आप नए दोस्त बनाने जाते हो ना, आपको 10 बार सोचना पड़ता है शुड आई ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट, क्योंकि तुम नहीं जानते किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, या कोई एक्चुअली में does someone have the best interest at heart तुम्हें लेके। what I really think is कि selfishness होना चाहिए। if you want to succeed in this world ना, तुम्हें अपने आप को अच्छा बनाना है इंटरनली और बाहर से अपनी पर्सनालिटी ठीक करनी, सब कुछ करना है, be a little selfish। and गौर से सुनो, I'm saying be a little selfish, not कि पूरी तरह से ही नजरअंदाज कर दिया है दूसरों को वगैरह। तो नहीं, selfishness is not negative when used in proper amounts। दैट्स वेरी गुड पॉइंट कि खुद को सेल्फ लव करते करते इतने मतलब खुद में मत डूब जाओ कि जो बाहर आपके साथ दुनिया है अब उसको ही भूल जाओ। हाँ, थोड़ा सा सेल्फिश हो सकता है खुद के लिए अपनी स्टडीज को लेके, कि नॉट शेयरिंग योर असाइनमेंट और नॉट शेयरिंग योर वर्क इन योर जॉब, या आपका प्रोजेक्ट जो है, जो भी चीज है, आप उसमें सेल्फिश हो सकते हो, बट इन द ह्यूमैनिटी प्रोसेस यू हैव टू बी सेल्फलेस पर्सन। Exactly, keep a very keep balanced these things, कब, जैसे वही चीज मैं फिर से कहूंगी कि कब खुद की मदद करनी है और कब दूसरों की मदद करनी है। We have to learn that, and we have to also learn कि how to say no। ये भी सेल्फ लव में ही आता है, क्योंकि जब आप कोई चीज कर नहीं पा रहे हो या आप कर नहीं सकते हो, आप किसी मुसीबत में पड़े हो और आप दूसरे को नहीं बता सकते कि दैट आई एम नॉट एबल टू डू इट, तो हमें से नो कहना भी सीखना पड़ेगा और सुनना भी सीखना पड़ेगा। यस, दोनों ही चीजें इम्पोर्टेंट है इसमें, दोनों ही चीजें इम्पोर्टेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि जो सेल्फिश हो रहा है उसके साथ कोई ट्रॉमेटाइज हो गया हो इन देयर लाइफ, कुछ ऐसा हुआ हो जो जिन्हें मतलब मजबूर कर दिया उनको कि सेल्फ लव मैंने बहुत कर लिया, मैंने सेल्फलेसनेस बहुत कर ली, बहुत लोगों की हेल्प कर ली, बट नाउ इट्स टाइम फॉर मी। बट उस प्रोसेस में वो सेल्फिश कब बन जाते हैं उनको खुद नहीं पता। Yes, ये चीजें ना क्या है कि ये चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, दे से कि शेयरिंग बनो, केयरिंग बनो, लेकिन वो बैलेंस वाली चीज ना कोई नहीं सिखा पाता। तो या तो लोग बिल्कुल ही सेल्फिश निकल जाते हैं, या तो वो बिल्कुल ही सेल्फलेस हो जाते हैं कि तुम पीपल वॉक ओवर देम। ये बड़ी दिक्कत है आज के टाइम में, और ये लाइफ ही सिखाती है। जब बहुत बार एग्जाम लेती है उसके बाद ही पता चलता है मुझे यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए था, बट जो सेल्फिश हो रहा है हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दैट व्हाई ही इज बीइंग सेल्फिश, क्योंकि उसके पीछे कोई बड़ा रीजन तो नहीं है, बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई रीजन ना हो। कुछ 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बचपन से ही सेल्फिश हो ड्यू टू देयर एनवायरनमेंट, but 90% of people like we think, we are not sure about it, कि शायद कोई ऐसा बड़ा रीजन होगा कि जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन अपनी पर्सनालिटी ऐसी करनी पड़ी कि ताकि उन्हें कोई पसंद ना करे, ताकि उनकी कोई लाइफ में ना आए, because they want to stay alone in that process। yes, किसी को फोर्स करना तो कोई मतलब नहीं बनता। Understanding is very necessary in this case. So thank you Nikita for coming and enlightening us with your knowledge. It was very fun to understand and learn about self-love and selfishness through psychological concept and through every concept which we are learning, I think, and we will be learning in the future. So as we come to the end of the episode, do you have any message which you would like to share for our listeners? Yes. Okay, so first of all, thank you for giving me this platform, Sanjana. And so what I would like to say in the end is कि don't worry about what others think about you. चाहे वो तुम्हारी family हो, चाहे वो friends हो, कोई भी हो, don't worry about them. Keep, try to love yourself
the more you can, the more is good. Okay, self love is very necessary क्योंकि it will not only allow you to look within you and to understand yourself, but it also allows you to understand people around you too. So don't be scared of anyone and just keep loving yourself. And I would like to add some point if you don't mind. एक Yeah. last point add करना चाहूंगी कि self love को practice करना भी शुरू करना पड़ेगा. Then you will be able to learn the difference between self love and selfishness. And that's all I want to say. Thank you, Nikita, for coming, and it was a very great talk and pleasure to talk with you. Thank you. Thank you so much. God. So guys, this was our journey of learning what is self-love and what is selfishness and how we can differentiate between them. And I hope you all enjoyed this episode and learned something new through this journey. Now it's your time to do your homework by sharing your views and your comments on this episode by contacting me on my Instagram, that is @IamSanjnaGoel. And don't forget to subscribe to my Self-Love Club to listen new episodes every Sunday on Spotify, JioSaavn, Gaana Music, Amazon Music, Apple Music, and wherever you get your podcast. Thank you so much for your kind listening. Peace.